वही तक कि क्लास में हमने देखा था कि डीएचसीपी सर्वर क्या होता है, कैसे हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते हैं, डीएनएस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्यों डीएनएस में क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं। That all things we will discuss in our previous class. And also we get to know about the SNMP protocol, how SNMP work, and why we need SNMP protocols in the NMS. NMS is network monitoring system like solar wind, or there are lots of apps applications are there to monitor, to configure the Yes, solar uh, wind currently our project is working, is so using you are working with the solar wind. wind as Okay, so in solar wind the basic protocol, which protocol is used in the solar wind application? currently, I don't have any access for that to checking on that. Maybe recently I'm joining this project for the maybe within 20. In this project, what's the things are going on, and what Uh, you do like a in this FortiGate firewall and Palo Alto firewall, they are using current for the hospital man. hospital management? Yes, Okay, so they use the solar wind to monitor the that's all the network. LH for that. So the basic protocol used in the any NMS network monitoring system, that is SNMP. Okay, SNMP के बिना हम कोई भी एप्लीकेशंस मॉनिटरिंग के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है डिवाइस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जस्ट लाइक इफ यू वांट the CPU health, if you want the router device interface health, anything. So you have to send a message, send a request to a device that give me that information. To whom you talk, there is any person ना, जिससे आप बात करोगे, तो दैट पर्सन इज एसएनएमपी। एसएनएमपी क्या करता है, डिवाइस से इंफॉर्मेशन लेके आपकी जो भी रिक्वेस्ट होती है उसको इन्फॉर्मेशन देता है, और वो इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप अपने नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम पे एनएमएस एप्लीकेशन जो होता है उस पे आप ये चीजें देख पाते हो। ठीक है, अगर आप चीजें कॉन्फ़िगर कर रहे हो, लेट सपोज कि आप यहीं से चीजें को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एप्लीकेशन का यूज करके, तो कॉन्फ़िगरेशन आपने जैसे ही पुश किया, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा, जाके राउटर पे होगा। तो राउटर पे जाएगा कैसे, तो वो होता है गेट रिक्वेस्ट, सेट रिक्वेस्ट, बहुत टाइप की उसमें रिक्वेस्ट होती है। जब आप थोड़ा सा और एडवांस जब एप्लीकेशन सॉफ्ट एसडीएन के बारे में जब पढ़ोगे ना, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, उसमें इन चीजों के बारे में और अच्छे से आपको समझ में आएगा। okay. In the advanced level, they will teach for the this one like load balancing also, or whether the load balance is Yes, separate. yes, when you go for the SD-WAN also, there you get to know about the controller parts. When you get to know about the firewall also, or Cisco ACI, Cisco DNA center, there are lots of technology. So in every technology, you get to know about how to monitor, monitoring display, and the monitoring criteria, how to configure from the software defined. There are lots of application, lots of technology that use the software defined networking in the current era, because everything is get automated right now. No one use the manual CLI configuration. But when we start to learn networking, we have to do the manual, because without manual configuration, did not know anything in automation. ओके, तो जब आप लोड बैलेंसिंग पढ़ोगे या फिर आगे आप एसटीएन पढ़ोगे, तो एसटीएन में आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे हम कंट्रोलर की हेल्प से चीज़ों को एक जगह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर दिनेश, तो Yes, इट्स yes, yes. बिगनिंग बिगनिंग ऑफ योर जर्नी। और जैसे जैसे आप सीसीएनपी पढ़ने जाओगे, फिर आगे जाके आप फायरवॉल पढ़ोगे, एसटी वैन पढ़ोगे, तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है, Okay, ये okay. पहला सीसीएन ने क्या है, पहला गेट है बस। पहली गेट खुली है तो आपके पास कई सारे गेट अब तो सबसे अच्छी बात है, इतने अच्छे प्रोजेक्ट में काम करने को आपको मिला है कि जहाँ पे आप फायरवॉल के साथ भी हो, नेटवर्किंग के साथ भी हो, साथ ही साथ मॉनिटरिंग टूल का भी यूज कर लो, सोलर विंड। तो इट्स अ गुड स्टार्ट। तो आपको एक्सपीरियंस कितना हो गया अभी Maybe 2 years. तक Two. नेटवर्किंग में स्टार्टिंग से? Yes, yes. Networking में 2.3 years probably. तो यू आर इन चेन्नई? Yes, yes. I mentioned. Just give me a minute.
तो You can continue, sir. ओके ओके। तो आज की क्लास में हम सिसलॉग के बारे में देखेंगे कि सिसलॉग, तो बिफोर मूविंग टू सिसलॉग, फर्स्ट वी गेट टू नो अबाउट द व्हाट इज लॉग। तो लॉग क्या होता है कि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है आज के टाइम पे, कोई भी आप कॉन्फ़िगरेशन लोगे तो आपको हर टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि आपको एक रॉ डिवाइस मिलेगा जिसपे आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। आप जहाँ पे भी जॉब करने जाओगे या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत नेटवर्क बना बनाया हुआ पहले से मिलेगा, उसमें आप बीच में जाओगे। सो क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई है उसमें, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आप कैसे देखोगे, क्या चीज देखोगे, या फिर कुछ ऑडिट की चीजें चल रही हैं, आप ऑडिट के टीम में हो, तो आप जा रहे हो सपोर्ट देने, सपोर्ट प्रोवाइड करने जा रहे हो, तो आप कैसे पता चलेगा इस पे क्या क्या चीजें हुई हैं और हमें कहाँ पे काम करना है। तो सबसे मेजर पार्ट इसमें आता है कि आपको लॉग देखने आना चाहिए, और लॉग की हेल्प से हम चीजों को देख पाते हैं कि कौन से टाइम पे क्या ग्लिच आया है, कौन सी कमांड को पुश किया गया है, कब हमारा राउटर अप था, कब हमारा राउटर डाउन हुआ है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन इस पे चली है। ईच लाइन बाय लाइन क्या होता है, ऑडिट होता रहता है, रिकॉर्ड होता रहता है, उसी रिकॉर्ड को, उसी से जो कॉन्फ़िगरेशन की जो होता है कि क्या क्या चीजें की हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉग। लॉग में आप हर एक चीज देख सकते हो कि कौन सी यूजर ने लॉग इन किया, उसने कौन सा कमांड चलाया, किस टाइम तक डिवाइस अप था, कौन से टाइम पे डिवाइस डाउन हुआ, किस कॉन्फ़िगरेशन के बाद कौन सा डिवाइस डाउन हुआ। ईच एंड एवरीथिंग यू गेट टू नो इन द लॉग। सो लॉग को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास मेथड होता है, वो होता है syslog सर्वर। आइदर वी यूज द syslog, आइदर वी कॉन्फ़िगर द syslog इन द राउटर, या तो हम राउटर पे कर सकते हैं, और वी कैन कॉन्फ़िगर द syslog इन द सर्वर आल्सो। सो टू टाइप्स है। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम राउटर पे करते हैं, सो राउटर हैव द स्मॉल मेमोरी, तो इट डज नॉट रिकॉर्ड एवरी लॉग। इसके पास क्या होता है, कम मेमोरी होता है, तो ये हर चीज रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। ये कुछ पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लॉग को, लेट सपोज 1 वीक, 2 वीक और 3 वीक के लॉग को ये क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। क्योंकि राउटर एक अलग चीज के लिए बना है, वो राउटिंग के लिए बना है, उसके पास मेमोरी स्टोरेज इतनी नहीं होती है कि आपको 1 साल 2 साल की लॉग को इकट्ठा करे। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म की लॉग चाहिए होती है तो हम क्या यूज करते हैं, सिसलॉग सर्वर यूज करते हैं, जहाँ पे स्टोरेज ज्यादा होता है, और हम मोर देन 1 ईयर, मोर देन 2 ईयर के लॉग को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो अब लॉग के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आप एक सपोर्ट टीम में हो या फिर आप ऑडिट के लिए आ रहे हो, ये सारी चीजों में, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, लॉग इकट्ठा करते हो और लॉग को रीड करते हो। तो लॉग क्या क्या प्रोवाइड करता है, लॉग प्रोवाइड करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग। दिस लॉग, लेट मी चेंज द कलर, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प होता है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए, लेट सपोज किसी ने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया और चीजें हमारी डिवाइस क्या होगी, स्टॉप हो गई, तो हम वहां से देख सकते हैं किसने कमांड किया, ताकि उसको हम जो भी पनिशमेंट हो सकता है या फाइन हो सकता है उसमें हम लगा सकते हैं। जिसकी डर से भी क्या होता है, इसके फियर से लोग इस पे चीजें नहीं करते हैं, क्योंकि लॉक से सब कुछ पता चल जाता है कि आपने क्या क्या किया है इस डिवाइस पे। ओके, सो लेट्स गो, कॉन्फ़िगर करके देखते हैं कि सिसलॉक को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारी एक टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी जैसे नॉर्मल हर ऑफिस में होती है, एक राउटर लगा है, स्विच लगा है, वहां से एक डिवाइस लगा है, और उस राउटर से हमने एक सर्वर को कभी कनेक्ट कर दिया है, तो जितने भी लॉग यहाँ पे इकट्ठा होंगी इस राउटर से, वो क्या होंगी, जितनी भी चीजें करेंगे वो उस सर्वर में रिकॉर्ड होती रहेंगी कि यहाँ से क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई, क्या क्या चीजें गई। ओके, सो तो सबसे पहले हम आईपी को कॉन्फ़िगर कर देते हैं दोनों पोर्ट पे। तो स्विच के साइड हम दे देते हैं 10 सीरीज का। सो
Interface G0 by 0. IP address is 10.1.1.100 and 255 oh, 255 in 0. No, सर एंड एग्जिट कर देते हैं। इंटरफेस G0 by 1 पे जाते हैं एंड IP address is 12.1.1.1 into 55 to 55 to 55 0. Now set exit. Now uh, connectivity is done from server to PC. So before moving further, let's assign the IP address on the server also. So I gave 12.1.1.2 and subnet mask is /24. So we gave 255 0 and default gateway फिर डिफॉल्ट गेटवे रहने देते हैं। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है। इतना हो गया एंड पीसी पे दे देते हैं। ओके, राउटर पे हमने दिया था 100। ओके, तो डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िग 10.1.1.1। ठीक है, 1 एंड डिफॉल्ट गेटवे इज 10.1.1.100। नाउ लेट्स चेक द कनेक्टिविटी। Ping 10.1.1.100. So we are able to reach out our router. Now let's ping server 12.1.1.2. So we did not get any reply because okay. We have to give the route so that it reached from PC to server. So route is missing. So before giving anything, let's enable the services of log। Here is the syslog। ठीक है, syslog में आएंगे एंड यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको पैकेट फिर ग्लिच है कि कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। syslog तो दिस वन इज फॉर ऑन एंड दिस वन इज फॉर ऑफ। तो पहले ऑन कर देंगे हम सर्वर को एंड बस ऑन कर दिए। यहाँ पे हमें चीज़ों को ऑन करना था। नाउ अब क्या करना है हमें, अब हम चलेंगे राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या चीज़, रूट के लिए। तो आईपी हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया। सो आईपी रूट डिफॉल्ट रूट डाल देंगे 0.0.0.0 0.0.0.0 एंड 12.1.1.2। ठीक है, डेस्टिनेशन ये हमारा हो जाएगा कि कोई भी इधर से ट्रैफिक आता है वो इस डेस्टिनेशन पे चला जाएगा ये विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट रूट। तो एग्जिट राइट। नाउ इस पे चल के देखेंगे लॉग पे। अभी कोई लॉग नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, राउटर पे लॉग के लिए पहले बताना पड़ेगा कि कौन से डिवाइस पे जाके आप लॉग को इकट्ठा करो। तो वापस से राउटर पे आएंगे
एंड जस्ट कॉन्फ़िग में जाके 50 में LOGGING लॉगिंग, एंड लॉगिन डालने के बाद जहाँ पे हम लॉग को स्टोर कराना चाहते हैं वो सर्वर की आईपी 1.1.2। ठीक है, बस इतना करना है तो ये आईपी असाइन हो जाएगा लॉगिन का। एंड LOGGING लॉगिंग ट्रैप डीबगिंग। तो इससे क्या होता है कि इसको सारे लेवल का क्या हो जाता है, इस पे अथॉरिटी इसको मिल जाता है कि सारी क्या कर सकता है कॉन्फ़िगरेशन अब स्टोर कर सकता है। ठीक है, इंटर कर देंगे और कौन से सोर्स पे जा रहा है ये बता देंगे, मतलब कौन से पोर्ट से निकल के जा रहा है ये हम बता देंगे। सो LOGGING लॉगिंग शो यू आर सोर्स जी 0/1। ठीक, ये 0/1 से क्या हो रहा है, ये निकल रहा है। तो ये देखते हैं ये क्या हुआ। तो ओके, तो सोर्स का इसमें नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है सिस्को में इनेबल है तो यहाँ पे कमांड नहीं दे रहा है। तो अब हम देखते हैं क्या हमारा लॉग इकट्ठा हुआ है क्या कुछ। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम दोबारा से एग्जिट करेंगे और जैसे राउटर पे अभी कितने इंटरफेस 400 आईपी इंटरफेस एग्जिट करके, तो आईपी इंटरफेस ब्रिफ देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास एक और पोर्ट बचा हुआ है जिसका आईपी अनअसाइन है। हम उस पोर्ट को क्या कर लेते हैं, अब करके देखते हैं कि क्या होता है और लॉग में कैसे क्या इकट्ठा होता है। ठीक है, ताकि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख सकें, ताकि लॉग में कैसे इकट्ठा हो रहा है हमें ये देखना है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िग में जाता हूँ और इंटरफेस G0/2 पे जाता हूँ एंड उसको क्या कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। ठीक है, बस सेट करके हम चलते हैं सर्वर पे। तो अभी कुछ कमांड नहीं आया। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया, दोबारा से स्टार्ट किए तो यहाँ पे आ गया कि 12.1.1.1 से होस्ट नेम ये है, यहाँ से हमारा दो होगा। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन में आया हमने, यहाँ से आप देख सकते हो कंसोल बाई कंसोल कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ से सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको कि लॉगिंग होस्ट स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट हुआ स्टॉप हुआ लॉगिंग टू होस्ट 12.1.1 पोर्ट 114 स्टार्ट CLI इनिशिएटेड। ठीक है, इतना हुआ है, सेट हो गया। नाउ वापस से नो सेट करते हैं एंड आईपी एड्रेस दे देते हैं 13.1.1.10 एंड 255 पर से नो सेट कर देते हैं। एग्जिट करके राइट करा लेते हैं। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देख लेते हैं। ठीक है, तो आईपी एड्रेस असाइन हो गया, बट क्या है, अभी कोई पोर्ट नहीं है तो ये चीज़ें डाउन ही रहेंगी। तो हमें देखना है किस पे। अब क्या हुआ देखो, सेम राउटर से हमने क्या किया, फिर से कमांड डाला और यहाँ पे दिखा चेंज स्टेट टू डाउन। ठीक है, डाउन हुआ, पहले डाउन था एंड ये पहली बार था कंसोल से हमने लिया कॉन्फ़िगरेशन में एंड उसको क्या किया, अब किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं लिंक अभी डाउन ही है, अप नहीं होगा। बट क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारा जो मैसेज था कि इस पे क्या कमांड चला, क्या चीजें चली, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉग। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, इस लॉग में आके इकट्ठा हो जाएगा कि हम कहाँ से क्या चीजें कर रहे हैं और ये सारी चीजें दिखेंगी यहाँ से। क्लियर।
Yes, sir. Yes. तो ऐसे ही कोई भी कमांड आप चलाओगे तो यहाँ पे लॉग में आके इकट्ठा हो जाता है। ये तो बस प्रैक्टिस के लिए था कि हम यहाँ पे कुछ चलते हैं तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सिसलॉग सर्वर का। तो आप कहीं पे भी एक लॉग इकट्ठा करने के लिए एक सर्वर पे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। सर्वर की आईपी बस पता होनी चाहिए, और उस सर्वर की आईपी पे यहाँ से राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे तो यहाँ से जो भी चीज जाएगा वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। बट सिसलॉग का फीचर उस सर्वर में होना चाहिए। क्लियर नाउ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिपल ए पे। सो व्हाट इज ट्रिपल ए? ट्रिपल ए मीन्स ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। सो इसके पहले हमने कई जगह देखा कि जब रिमोट एक्सेस की बात आ रही थी, ठीक है, टेलनेट एसएसएस हमने देखा, तो वहां पे हमने कई सारे यूजर को क्रिएट कर रहे थे ताकि यूजर वन क्या कर सके, एसएसएस टेलनेट ले सके। अगर यूजर वन नहीं है तो टू है, तो क्या कर सके यूजर टू उस टाइम पे क्या कर सकते, एक्सेस ले सके। ऐसे करके एक राउटर है और उसके लिए लेट सपोज देयर आर टू और थ्री राउटर, ठीक है, और वी हैव फोर इंजीनियर्स इन ईच शिफ्ट। तो एक शिफ्ट में क्या होगा, चार इंजीनियर हैं तो चार क्या होंगे, चारों के पास एक्सेस होगा, तीनों का, मतलब वन टू थ्री फोर ये बोल देता हूँ मैं। इसके पास भी तीनों का एक्सेस होगा, इसको पास भी तीनों का एक्सेस होगा, और इसके पास भी क्या होगा, तीनों का एक्सेस होगा। हो सकता है कि तीनों में एक्सेस में डिफरेंस हो, प्रिविलेज लेवल का, किसी के पास रीड का ओनली फीचर हो और अथॉरिटी हो, किसी के पास रीड एंड राइट का दोनों हो सकता है। फिर डिपेंड करता है प्रिविलेज पे, हम कितना प्रिविलेज लेवल उसको दे रहे हैं। बट एक्सेस की बात करें तो इन चारों के पास एक्सेस होगा अगर ये इंजीनियर इसके लिए साइन हुए, ठीक है। नाउ लेट सपोज अब इनके पास फोर इंजीनियर थे, अब ये एक शिफ्ट में थे, मॉर्निंग शिफ्ट में, अब अगले शिफ्ट में आएंगे तो उनको भी चार को एक्सेस देना पड़ेगा। इसी तरह नाइट शिफ्ट में जो आएंगे उनको भी चारों का एक्सेस देना पड़ेगा। सो एक ही पीसी पे कितनी बार एक्सेस देना पड़ता है, चार, फोर टाइम इसके लिए, फिर फोर मॉर्निंग, फोर इवनिंग, फोर नाइट शिफ्ट के लिए। एक राउटर पे हमें 12 पर्सन का एक्सेस देना पड़ रहा है, ठीक है। उसी तरह इस पे सो लेट सपोज इफ यू हैव 50 और 50 प्लस राउटर्स, देन व्हाट यू डू, क्या आप मैनुअली असाइन करेंगे इतने राउटर्स को, इतने यूजर्स को बनाएंगे? चलो ठीक है, एक बार यूजर को क्रिएट भी कर लिया, लेकिन अगर यूजर क्या कर रहा है कि रिजाइन कर दे रहा है या फिर किसी पर्पस या किसी भी वजह से ये इस प्रोजेक्ट से किसी और प्रोजेक्ट में चल जा रहा है, मतलब वहां पे काम नहीं कर रहा, अब क्या होगा, अब कोई न्यू आएगा, तो न्यू आने से पहले क्या करना पड़ेगा, पुराने वाले की पूरी जितनी भी क्रेडेंशियल्स थी उनको डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लॉगिन करके कुछ भी कर सकता है। अब जितने डिवाइस पे हमने कॉन्फ़िगर किया था उतने डिवाइस पे से क्या करना पड़ेगा, इसका डिलीट भी करना पड़ेगा। तो अगर 50 डिवाइस पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया तो 50 डिवाइस से हमें डिलीट करना पड़ेगा हर डिवाइस पे से। तो ये एक बहुत ही लंबा टास्क हो जाता था, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था एडमिन वर्क के लिए। तो वहां पे बेनिफिट में कौन आया, वहां पे रोल में आया ट्रिपल ए। ट्रिपल ए क्या करता है कि ट्रिपल एक सर्वर हो गया, ठीक है। अब ये सारे डिवाइस किससे कनेक्ट हो जाएंगी, एक ट्रिपल ए सर्वर से। और जो पहले, लेट मी ड्रॉ हियर, जो पहले यूजर थे ना, अब यूजर की इंफॉर्मेशन क्या होगी इस राउटर पे नहीं होगी, ये बस लॉगिन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब ये लॉगिन करेंगे तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा ट्रिपल ए सर्वर को, ट्रिपल ए सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और बोलेगा क्या ये यूजर वेरीफाइड है, क्या इसके पास ऑथेंटिकेशन है। मतलब पहले तो ऑथेंटिकेट करेगा, फिर चेक करेगा क्या इसके पास ऑथराइजेशन है। अगर ऑथराइजेशन है तो क्या है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, क्या चीज कर सकता है, ये सारी चीजें हो जाएंगी तो अकाउंटिंग का काम करेगा, मतलब कि ये पर्सन क्या क्या चीजें कर रहा है, यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चला रहा है, क्या कर रहा है, ये सारा चीज क्या करेगा, मॉनिटर भी करेगा। तो अब जो डिवाइस हमें क्या करता था कि लेट सपोज कितने लोग थे, थ्री डिवाइस है और हमारे पास फोर पीसी था, टोटल कितने लोग थे, 12 इंजीनियर थे। अब हमें ओनली 12 इंजीनियर की इंफॉर्मेशन इसमें फिल करनी पड़ेगी। वो डिवाइस इधर थ्री हो या फोर लग जाए या फिर फाइव डिवाइस लग जाए, या फिर मॉर्निंग शिफ्ट हो, नाइट शिफ्ट हो, कुछ भी हो। यहाँ पे क्या था, इस पे भी 12, इस पे भी 12 और इस पे भी 12, मतलब 12 थ्री जा
36। 36 टाइम हमें, अगर खाली 3 राउटर में 4 इंजीनियर है तो इतनी टाइम हमें क्या करना पड़ा था, यूजर को क्रिएट करना पड़ रहा था, ठीक है। अब वो चीज कितनी टाइम करना पड़ेगा, ओनली 12 टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इंजीनियर कितने, 12 है। हमें डिवाइस से मतलब नहीं, डिवाइस कितना भी हो, डिवाइस 4 हो 5 हो, बट यहाँ पे अगर डिवाइस एक डिवाइस बढ़ा देंगे तो हमारा 12 और ऐड हो जाएगा। क्लियर। तो इससे बचने के लिए क्या हुआ, हमारे पास ट्रिपल ए सर्वर आया। अब ट्रिपल ए सर्वर करता क्या है कि यहाँ पे हम वन टाइम यूजर को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। यूजर की आइडेंटिटी को क्रिएट कर दी, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है उसका, इसके पास क्या है, इतनी अथॉरिटी है, ठीक है। अब कोई भी यूजर आएगा, वो इस डिवाइड पे अगर लॉगिन करना चाहेगा तो ये लॉगिन की इंफॉर्मेशन कहाँ सेंड करेगा, ट्रिपल ए सर्वर को। अब पूछेगा क्या ये ऑथराइज ऑथराइज है, तो ट्रिपल ए सर्वर क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। अगर ऑथेंटिकेट करेगा और वैलिड कैंडिडेट, वैलिड इंजीनियर निकलेगा, तो क्या करेगा, इसको ऑथराइजेशन की परमिशन दे देगा, ठीक है ऑथराइज कर लो इसको, अंदर आके काम करने दो, ठीक है। ना काम करने की बात आएगी तो यहाँ पे चेक होगा कि इसके पास प्रिविलेज लेवल क्या है। जब ये अंदर काम करेगा तो क्या होगा, अब ये जो भी काम कर रहा है उसका क्या होगा, अकाउंटिंग होगा। अकाउंटिंग इन द सेंस जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, क्या कमांड चला रहा है, सारी चीज क्या होगा, ट्रिपल ए सर्वर में रिकॉर्ड भी होगा, ताकि बाद में देखा जा सके। नाउ अगर अब डिलीट करने की बात आई तो लेट सपोज यू हैव 50+ डिवाइस, तो अब ये यू हैव ओनली 12 इंजीनियर्स, तो ओनली 12 इंजीनियर्स की इंफॉर्मेशन इसमें फिल करनी पड़ेगी, 50 डिवाइस पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर एक इंजीनियर छोड़ के जाता भी है तो आप क्या करो, बस यहाँ से एक बार एक इंजीनियर की इंफॉर्मेशन को डिलीट करो, तो वो 50 डिवाइस से भी लॉगिन करना चाहेगा तो सबसे रिक्वेस्ट कहाँ आएगा, ट्रिपल ए सर्वर पे ही आएगा। ट्रिपल ए सर्वर क्या करेगा, इसको रिजेक्ट कर देगा कि ये हमारे डेटाबेस में नहीं है, इसको अलाउ नहीं करना है। तो यहीं से क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसके आने से क्या हुआ, हमारा जो भार था बार बार कॉन्फ़िगर करना, जो हमारा एक्स्ट्रा मैन वर्क था, वो क्या हुआ, कम हो गया। क्लियर। ट्रिपल ए सर्वर क्या करता है। I need to check, sir, again one video for that. I need to cross check that. ओके ओके। तो ट्रिपल ए इज ए फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू द नेटवर्क डिवाइस अक्रॉस रिसोर्स। तो फर्स्ट इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मीन्स हु आर यू। सबसे पहले ऑथेंटिकेट करेगा कि आप कौन हो, ठीक है। जैसे कि आप लॉगिन करते हो किसी राउटर में, आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, अगर ये पासवर्ड क्या हुआ, करेक्ट हुआ, तो आप क्या होगे, ऑथेंटिकेट हो गए। अगर ये पासवर्ड करेक्ट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये काम होता है ऑथेंटिकेशन का। ना तो सेकेंड डे की बारी आती है ऑथराइजेशन। तो व्हाट आर यू अलाउड टू डू, ऑथेंटिकेशन तो हो गया, आप लॉगिन कर लिए, उसके बाद चेक होता है कि आप क्या क्या चीज, क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हो। वो डिपेंड करता है हमारे प्रिविलेज लेवल पे और एक्सेस लिस्ट पे। एसीएल अगर कॉन्फ़िगर है तो वहाँ पे भी कौन से नेटवर्क से आ रहे हो, क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, खाली देख सकते हो, या कितने डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो, ये सारी चीजें ऑथराइजेशन में हमारी कंफर्म होती है, ठीक है। ना यहाँ से भी चीजें कंफर्म हो गई, उसके बाद बात आती है काउंटिंग की। काउंटिंग मीन्स व्हाट डिड यू डू, आपने क्या क्या किया। जो भी कमांड चलाओगे, जो भी काम करोगे, हर चीज कहाँ होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा अकाउंटिंग में कि आपने क्या क्या किया। कीप्स लॉग ऑफ यूजर एक्टिविटी, जैसे कि लॉगिन टाइम, कब आपने लॉगिन किया, एग्जीक्यूट कमांड, कौन से कमांड को एग्जीक्यूट किया, रिसोर्स क्या क्या आपने यूज किए। एग्जाम्पल लॉगिंग ऑल कॉन्फ़िगरेशन चेंज और ऑडिटिंग, जैसे कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, ऑडिटिंग के लिए हम लॉग इकट्ठा करते हैं, वो कौन से करता है, अकाउंटिंग का काम होता है, ठीक है। सो वाई ट्रिपल एज इंपॉर्टेंट, सेंट्रलाइज कंट्रोल, जैसे कि रेडिस सर्वर, अटैक सर्वर होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट। सो इनहेंस सिक्योरिटी पर यूजर पॉलिसी, ऑडिट एंड कंप्लायंस के लिए लार्ज नेटवर्क में हम इस चीज का यूज करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इंजीनियर्स एंड नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हर डिवाइस के लिए एक्सेस करना, राउटर पे मैनुअली कॉन्फ़िगर करना, ये एक बहुत लंबा टास्क हो जाता है। इसलिए हम ट्रिपल ए सर्वर का यूज करते हैं, जहां से हम इस चीज को ऑथेंटिकेट कर सकें और एक ही जगह से यूजर आईडी की क्रेडेंशियल को क्रिएट कर सकें एंड रिमूव कर सकें। तो लोकल ट्रिपल ए मतलब ऑथेंटिकेशन ऑन लोकल राउटर, जैसे हम राउटर पे क्या करते हैं, यूजर नेम क्रिएट करते हैं, वो हमारा किस में आ जाएगा, लोकल राउटर, लोकल में ट्रिपल ए में काउंट होता है। जहाँ से हम अभी तक कर रहे थे, जैसे टेलनेट एसेस किए थे, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिन यूजर नेम बनाया था हमने, तो डिफरेंट नंबर ऑफ यूजर, तो वो क्या आ जाएगा, हमारे लोकल ट्रिपल ए में आ जाएगा ना। सर्वर बेस, सर्वर बेस क्या होता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वर, रेडिस सर्वर एंड टेकेक्स सर्वर। रेडिस में क्या होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है, मतलब कि ये सिस्को की नहीं बनाई हुई चीज है।
एक एक सर्वर क्या है, सिस्को की प्रॉपर्टी है, तो सिस्को अपने लिए यूज करता है। बाकी अगर यही चीज मल्टी वेंडर में करना है तो हम कौन से सर्वर का यूज करेंगे, रेडिस सर्वर का यूज करेंगे सेम चीज को करने के लिए। लोकल ट्रिपल हमने ऑलरेडी बता दिया, जैसे कि हम टेलनेट एसएसएस करते थे तो उसमें यूजर नेम में एडमिन ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करते थे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लोकल ट्रिपल ए में आएगा। ये कहाँ तक पॉसिबल है, ओनली स्मॉल नेटवर्क में जहाँ पे एक दो राउटर हो वहां पे। बट इफ यू आर वर्किंग विद एंटरप्राइज नेटवर्क and there are 100 plus routers, then you have to use the triple A server. Clear? So this is all about triple A and syslog. So now NTP. The next topic is NTP. So let me open the NTP. NTP is a network time protocol. नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल क्यों यूज होता है, जैसे कि हम अभी तक लॉग की बात कर रहे थे, तो लॉग ले रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भी माइनर सेकंड, जैसे कि राउटर पे कोई और टाइम चल रहा है, टाइम भी होता है डिवाइसेस पे, ताकि हम उसको टाइम के साथ रिकॉर्ड कर सके कि कौन से टाइम पे क्या कॉन्फ़िगरेशन चला। और सर्वर पे कुछ और टाइम चल रहा है, दो तीन राउटर हैं उस पर अलग अलग टाइम है। तो अब क्या होगा कि अगर हम एक राउटर पे चीजें देखेंगे कि 11.1 सेकेंड पे क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन चला, 11.1 सेकेंड पे ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, यहाँ पे पुश हुआ इस वाले राउटर पे। और उस टाइम पे यहाँ पे जब तक ये पुश हुआ, हो सकता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट समय तो मिला नहीं सकते आप दोनों का, एक टाइम पे बिल्कुल सेट करना इज इम्पॉसिबल, कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस तो आ जाएगा। तो वहां पे टाइम हो रहा था 11.2 सेकेंड। क्या हुआ 11.1 और 11.2 में हम कंफ्यूज हो गए कि 11 पॉइंट, क्योंकि 11.2 पे भी यहाँ पे कुछ कमांड एग्जीक्यूट हुआ था। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे 11.2 पे क्या है, 11.2 यहाँ पे भी है, 11.1 वाला लें या 11.2 वाला लें, इट्स कंफ्यूजिंग, इट्स क्रिएट द कंफ्यूजन अगर हम लॉग लेते हैं। तो इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एनटीपी प्रोटोकॉल का। एनटीपी क्या करता है, हम एक सर्वर, एक राउटर पे क्या करेंगे, एक एनटीपी सर्वर बना देंगे, क्रिएट कर देंगे। अब लेट सपोज इस पे हमने क्या किया, मेन राउटर है एनटीपी सर्वर जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से, इस पे हमने 11:10 AM सेट किया। जैसे इस पे 11:10 सेट किया, इससे रिलेटेड, इससे कनेक्टेड जितने भी राउटर होंगे, जिसको हम बताएंगे कि आपका एनटीपी सर्वर ये राउटर वन है, तो ये 11:10 क्या हो जाएगा, सारे डिवाइस पे सेम हो जाएगा। मतलब बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं, जो टाइम यहाँ पे होगा वही टाइम हर डिवाइस पे हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अब हम किसी भी डिवाइस पे कोई भी लॉग देखेंगे तो हम एक्यूरेट देख पाएंगे कि जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पुश हुआ वही कॉन्फ़िगरेशन उस टाइम यहाँ पे भी था। जिससे क्या होगा, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था लॉग को देखने में, वो हमारा क्या हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। क्लियर? सो व्हाई एनटीपी इज इंपॉर्टेंट इन रियल नेटवर्क। एनटीपी मीन्स की एक्यूरेट लॉग, सिस लॉग, एसएनएमपी या ट्रिपल ए की बात करते हैं, जहाँ पे हम, एसएनएमपी क्या होता है, जब मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं कौन से टाइम पे, जैसे मॉनिटरिंग टूल ही लगा लिया आप, अब वहां पे सोलर विंड से आपका रिक्वेस्ट जा रहा है कि हेल्थ क्या है, अब हेल्थ 11.1 सेकेंड पे कुछ और दिखा रहा है, आपके लैपटॉप या आपके डिवाइस जहाँ पे आप रन कर रहे हो वहां पे 11.13 सेकेंड हो रहा था। आप सोचोगे कि ये टाइम लें या ये टाइम लें, तो वहां पे कंफ्यूजन है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एस एनटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अब एनटीपी में हो सकता है कि आप जीपीएस के थ्रू आप उसमें टाइम कॉल करा लो, तो जब जीपीएस के थ्रू आप मैनुअली टाइम फिक्स कर दो तो भी चल सकता है। किस लॉग सर्वर, जब लॉग हम इकट्ठा करते हैं, या ट्रिपल ए में भी क्या, अकाउंटिंग का जब बात आती है ट्रिपल ए में, तो अकाउंटिंग भी क्या करता है, लॉग इकट्ठा करता है। तो वहां पे इन सारी जगहों पे क्या होता है, हमें एक्यूरेट टाइम की जरूरत होती है ताकि हम एक्यूरेट लॉग को ले सकें। इफ द टाइम इज रॉन्ग, ट्रबल शूटिंग बिकम वेरी हार्ड। अगर थोड़ी सी भी टाइम क्या होगी, इधर उधर होगी, तो हमारी ट्रबल शूटिंग बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है? टाइम बेस्ड सिक्योरिटी जैसे सर्टिफिकेट, बहुत सारे डिवाइसेस पे सर्टिफिकेट की क्या होती है, लिमिट होती है। ठीक है, कि आप इतने देर तक, या 1 ईयर या 1 मंथ या 2 डेज के लिए लाइसेंस क्या है, वैलिड है। तो अगर टाइम डिफरेंस हो जाएगा तो हो सकता है कि 2.1 या 2.5 डे तक वो चला सकता है, अपने पीसी का टाइम चेंज करके चला सकता है। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए क्योंकि वहां पे एनटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, यहाँ पे जो टाइम कॉल होता है वो ऑटोमेटिकली सर्वर से कॉल होता है। ठीक है, लॉग करेक्शन रिलेटेड, तो ये सारी चीजें क्या है जिससे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है?
सो प्रिवेंट इशू इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो क्लाउड सर्वर कंट्रोलर आर रिक्वायर्ड एग्जैक्ट टाइम, जो भी एक नेटवर्क में है उस पर डिवाइस पे क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फायरवॉल शो अटैक एट 3 PM, फायरवॉल पे क्या हुआ 3 PM पे अटैक शो हो रहा है, और राउटर से जो ट्रैफिक गई है वो क्या है, ये 3 3 ओ क्लॉक 3.5 PM पे गई है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, अब हम यहाँ पे 3.5 पे देखेंगे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे 3 पॉइंट से गया तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। इससे हार्ड टू डायग्नोसिस, हम डायग्नोसिस करने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। सो एस्ट्रम वन ये क्या है, लेवल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रम जीरो दे देते हैं तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, जीपीएस लॉक हो जाता है, मतलब जो भी अगर आप नेट की कनेक्टिविटी है तो जीपीएस के थ्रू जो टाइम चल रहा होगा वो ले लेगा, ठीक है। एस्ट्रम वन देते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड, जैसे कि एक को हमने एस्ट्रम जीरो दे दिया तो यहाँ पे टाइम कहाँ से आ गया, जीपीएस के थ्रू आ गया, ठीक है, जीपीएस के थ्रू आ गया। अब इससे रिलेटेड ये हमारा क्या है, एसएनएमपी प्रोटोकॉल एक सर्वर है, ठीक है। इससे डिवाइस जो कनेक्टेड है उस पे हम क्या देंगे, स्ट्रम वन दे देंगे, तो जो टाइम इस पे चल रहा होगा वही टाइम क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रम टू, अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे भी अगर कोई डिवाइस है तो उसको हम स्ट्रम टू दे देंगे, ताकि जो यहाँ से क्या लिया इसने ले लिया, अब जो टाइम इस पे हो रहा होगा वही टाइम क्या करेगा, इधर वाले डिवाइस कनेक्टेड ले लेगा। तो जो टाइम इस पे हो रहा है वो टाइम इस पे होगा, जो टाइम इस पे हो रहा है वो टाइम इस पे होगा, तो सब जगह पे क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आता है तो हम स्टर्म 3 प्लस कर देते हैं, ठीक है। क्लियर। सो ये हो गया हमारा सिस्लॉग एनटीपी एंड ट्रिपल ए की थियरी, ठीक है। जहाँ पे सिस्लॉग की लैब थी वो हमने लैब भी करके देख लिया, तो आप क्या करना, लैब प्रैक्टिस करके देखना, बाकी कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके दिनेश। Sure, sir. I will check with next class board. ओके। ओके। बाय बाय, गुड नाइट दिनेश।